Hare Krishna. Welcome back to my YouTube channel English Temple with Yashwant. Free grammar video series में we have made so many videos and the topic is noun. उसी noun topic पे अब हम अगले section पे आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं और वो topic है हमारा types of noun. This is not a topic, basically the topic is noun. हमारे पास जो टॉपिक है वो नाउन है, लेकिन उस नाउन के टॉपिक पे जिस सेक्शन को आज हम टच कर रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ नाउन. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी टॉपिक. ये बहुत आसान सा टॉपिक होने जा रहा है, येट इट विल गिव यू डीपर इनसाइट्स. आपका नॉलेज में वैल्यू एडिशन होगा और मैं इसको बहुत इजी वे में एक्सप्लेन करूंगा. सो समवेयर इट विल ऐड वैल्यू. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं है, बट यस इट विल ऐड वैल्यू इन योर करंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक नाउन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So we are going to look at 10 types of nouns. We are going to look at 10 types of nouns. What are they? Common nouns, material nouns, collective nouns, possessive nouns, countable nouns, uncountable nouns, compound, abstract, concrete and proper nouns. So these 10 types of nouns we are going to look at, और आपको बहुत आसान हो जाएगा कि कौन सा noun किस type का है. You will be able to identify any noun very easily. So now we move on. First one, common noun. A name that we share commonly. कोई नेम जिसको हम कॉमनली शेयर करते हैं. समझते हैं इसे. आई आस्क हु इज ही. हु इज ही? ही इज अ बॉय. हु इज ही? ओह, ही इज अ बॉय. हु इज ही? ही इज अ बॉय. हु इज ही? ओह, यू आर सेइंग अ बॉय. Again, a boy. Different boys are there on the screen, but the common word that is being used for all the boys, for all the living entities, सारे living entities के लिए जो भी स्क्रीन पर हैं उनके लिए common word का हमारा है, that is boy. So common word that is boy. Boy, a boy, a boy, a boy, a boy. Okay? लेकिन ये सारे all the persons, all the people are different. All the people are different. So इनके लिए जो common नाम आ रहा है that is a boy. Now, once again you have to answer. Who is he? Before that, we just look at proper nouns. We are going to look at a name that we share alone. Earlier we saw, recently we saw a name that we share commonly. Here it is absolutely different or opposite to it. Here a name that we share alone. I ask the same question. Who is he? You say a boy, but not now this time. He is Abhishek. Who is he? He is Ritesh. Who is he? He is Bhupesh. He is Rishikesh. And he is Yashwant. Now see, इन सभी के लिए जो कॉमन वर्ड काम आ रहा है वो कॉमन नेम है, उसे अब कॉमन नाउन बोलते हैं, वो है बॉय. और जब हम इनके इंडिविजुअल नेम की बात करें जो ये खुद शेयर करते हैं, वो कॉमनली वर्ड काम में नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट रितेश, क्या रितेश कोई कॉमन वर्ड है? कोई कॉमन नेम है जो बहुत सारे लोगों के लिए काम आता है? नो. सो इट गिव्स यूनिक आइडेंटिटी, इसीलिए प्रॉपर नेम है. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. व्हाट इज इट? व्हाट इज दिस? यू से अ कार. व्हाट इज दिस? अगेन अ कार. व्हाट इज दिस? अ कार. व्हाट इज दिस? अ कार. ऑफ कोर्स कार्स. कार वो कॉमन वर्ड है जो सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आ रहा है. वंस अगेन यू हैव टू आंसर. सो कार कॉमन नेम हो गया. It is common noun. Now, once again, you have to answer what it is. You say a car. No, but this time it is Innova. I am just taking the names, the brand names or the company names, just for education purpose only, right? For your understanding. So Innova. What is this? This is Swift. Which car is it? Verna. Which car is it? Alto. Which car is it? Ambassador. Which car is it? Sumo. But they all are cars. So common name for different objects. One common name for all different objects. So that is common name. That is car. तो इन सबको हम कार बोल रहे हैं. कॉमन नेम इन सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए जो यूज में ले रहे हैं वो कार है. लेकिन जैसे ही मैंने इनका स्पेसिफिक नाम बताया, जैसे ही मैंने इनका यूनिक नाम बताया, I cannot call it Varna. I cannot call it Innova. I cannot call it Ambassador. ये इनका यूनिक नेम है, कॉमनली शेयर नहीं कर सकते हैं.
So this is proper noun. Now quickly identify करते हैं. You just pause the video and make sure in just 20-30 seconds you try to identify which noun is common noun and which noun is proper noun. So, or you can pause the video and then you can do this exercise very quickly. Once you are done, you can cross check because now I am going to answer. Okay, so let's check. Okay, India, proper name, proper noun. Apple, common. School, common. Radhe, proper noun. River, again common. Jaipur, proper. Banana, common. City, common. Amazon, proper. And doctor. So doctor is again common noun. Monday, see Monday. It is proper noun. It is not common noun. Monday is not the common name for different days. Monday repeat हो सकता है, लेकिन Monday is not the common name for different days. It is just one day and unique day in itself. So Monday, proper. Dog, common. Paris, proper. Chair, common. Shailu, proper. Building, common. Microsoft, proper. Mountain, of course, common. And Krishna, proper. Teacher, common. Rajasthan, proper. Pencil, common. Car, common. Modi, proper. Ocean, common. Lunch. Now, what is lunch? Your lunch, my lunch, you know it is noun. बट लंच कॉमन नाउन है फिर प्रॉपर नाउन है, थोड़ा सा पहचानने की कोशिश करें. लंच अनडाउटेडली इट इज कॉमन नाउन, इट इज नॉट प्रॉपर नाउन. ओके, आपने अपना लंच पैक किया क्या आज? आपने अपना लंच खाया? सो लंच एक मील का नाम है. आपका हो सकता है, मेरा हो सकता है, किसी और का हो सकता है. कॉमन नेम है जो दिन में, इन आफ्टरनून, दैट द मील दैट यू ईट इन द आफ्टरनून, दैट इज लंच. Maybe yours, maybe mine, maybe of somebody else. तो तीनों का भोजन तो अलग है. ओके, आपका तीनों का आफ्टरनून का भोजन तो अलग अलग है, बट हमने कॉमन नेम दिया हुआ उसको. अंडरस्टैंड? सो दैट्स व्हाई इट इज कॉमन नाउन. कंप्यूटर, कॉमन. एडल्ट, कॉमन. स्ट्रीट, कॉमन. फेसबुक, प्रॉपर. टाइगर, कॉमन. कंट्री, कॉमन. ट्री, कॉमन. श्रीलंका, ओके, दिस इज प्रॉपर. House, common. Google, proper. River, common. January, again proper, like Monday. Okay, and month, this is common. All right, so all these words now you can easily identify. All these words are there on the screen and you can easily identify which word is common, which word is proper. Okay, easy, very easy it is. Okay, now we move on. Next one is concrete noun. Objects or the things that we can see and touch, they appeal to our senses. देखिए, कॉन्क्रीट वर्ड का मतलब जानने की कोशिश करते हैं. कॉन्क्रीट एग्जैक्टली ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट का. आपने जो पहली बार एक वर्ड सुना, पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ यू हर्ड द वर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जैसे आपने सुना और पहली बार सुना, सो कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई नोन मेमोरी के साथ कोई ट्रिगर नहीं हो रहा है. रैंडमली कोई भी मेमोरी ट्रिगर हो गई, आपने किसी भी चीज को मान लिया होगा, या कोई भी जो नोन मेमोरी है वो रैंडमली पिकअप हो गई. आप कभी नहीं जानते कि इलेक्ट्रॉन क्या है जब आपने पहली बार सुना, तो वो एब्स्ट्रैक्ट था आपके लिए. लेकिन जैसे ही टीचर ने आपको एक्सप्लेन किया कि ऐसी कोई क्लास होती है और उस क्लास में टीचर ने कुछ ड्रॉ किया, उस क्लास में कोई नेगेटिव चार्ज, कोई समथिंग इज देयर एंड दैट होल्ड्स नेगेटिव चार्ज, वो कोई नेगेटिव चार्ज होल्ड करता है. आई एम नॉट फ्रॉम साइंस, आई कैन नॉट टेल यू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट, बट स्टिल आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इलेक्ट्रॉन जब आपने पहली बार सुना तो आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट था, और फिजिकली आप यू कुड नॉट टच इवन, आप उसे अभी भी टच नहीं कर सकते हैं, उसे देख नहीं सकते हैं, किसी भी सेंस ऑर्गन से आप उसे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते. सो ये आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट था. लेकिन जैसे ही टीचर ने आपको, किसी टीचर ने आपके स्कूल में आपको कुछ इस तरीके का शेप बना के बताया कि कोई नेगेटिव चार्ज होता है, वो इस क्लास में मूव करता है. ओके, तब उसके बाद में जब भी आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, या कोई इलेक्ट्रॉन वर्ड जैसे ही बोला जाता है, उस कंडीशन में आपके दिमाग में यही पिक्चर पॉपअप होता है. इसका मतलब जब तक एब्स्ट्रैक्ट था आप कुछ मालूम नहीं कर पाए, उसके बारे में कुछ जान नहीं पाए, लेकिन जैसे ही टीचर ने शेप बनाया तो फिर ये कॉन्क्रीट हो गया. अब जब कभी भी इलेक्ट्रॉन वर्ड कहा जाता है, सो समवेयर इन योर माइंड
what comes like negatively, something is negatively charged and that moves, that is electron. Okay, I'm not science, I think enough for your understanding here in the difference that I want to tell you between concrete and abstract nouns. So concrete का मतलब होता है आप अपने senses से उसको experience कर सकते हैं. So देखिए, और मैं concrete का meaning आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं कि with more color, size और shape, inside your head if you experience something with more color, size and shape, तो फिर समझ लीजिए कि वो कंक्रीट हो सकता है और वो कंक्रीट होता है. तो देखते हैं टेबल. इफ यू टॉक अबाउट टेबल, यस, विजिबल है, इट हैज अ सर्टेन शेप, इट हैज कलर्स, ओके, इट इज ऑफ अ पर्टिकुलर साइज. सो जो टेबल है, so there is an object that is table and it is with more color, size and shape, that's why it is concrete. Table is easily visible है आपके eyes, आपके जो sense organs है, so उसमें से one of the sense organs that is eyes, so उससे आप इसको देख सकते हैं. And then teacher, again visible, it is very easy, concrete. Television, it has a certain size, shape and color. Okay, television. Perfume, oh, when it comes to perfume, अब देखिए perfume में आप सोचेंगे कि concrete कैसे हुआ. कुछ ऐसा समझते हैं, जैसे ही आपने कलॉन्ग या परफ्यूम या डीओ जैसे ही आपने अप्लाई किया अपनी बॉडी पे, सो दूसरा पर्सन उस एक्सपीरियंस को महसूस कर सकता है, उसको कहीं ना कहीं फील कर सकता है. अगर मान लीजिए योर परफ्यूम डजंट गिव यू गुड स्मेल, गुड फ्रेग्रेंस, इमेजिन इट डजंट गिव यू वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, दूसरा पर्सन उसे वैलिडेट कर सकता है कि इट इज नॉट एज गुड एज द प्रीवियस वन दैट यू यूज्ड. जो पहले वाला था वो ज्यादा अच्छा था देन दिस वन. तो यहां पे कोई पर्सन वैलिडेट कर सकता है. तो परफ्यूम, जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं समवेयर एंड देन यू स्मेल, सो समवेयर यू फील इट, और दूसरा पर्सन भी सेम वे में फील करेगा. अंडरस्टैंड, डिफरेंट पीपल कैन एक्नॉलेज दैट फ्रेग्रेंस. तो यहां पे ये आपके सेंस ऑर्गन से, जो आपका नोज है, इससे आप एक्सपीरियंस करते हैं इसे. अंडरस्टैंड? ओके, अगर मैं आपसे कहता हूं कि स्ट्रेस, तो आप मुझे देखकर नहीं बता सकते या किसी दूसरे पर्सन को देखकर नहीं बता सकते कि उसमें एक्साइटमेंट है या नहीं, उसमें स्ट्रेस है या नहीं, डिप्रेशन किसी में है या नहीं, ये आप वैलिडेट नहीं कर सकते. कोई पर्सन है बिल्कुल ही सिटिंग क्वाइट, बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ है, आप नहीं कह सकते कि उसको डिप्रेशन है या नहीं, आप नहीं कह सकते कि उसको स्ट्रेस है या नहीं, राइट? आप नहीं कह सकते ये. सो यहां पे दूसरा पर्सन एक्नॉलेज नहीं कर सकता है, उसको वैलिडेट नहीं कर सकता है. जबकि आप किसी भी चीज को सेंस ऑर्गन से एक्सपीरियंस करते हैं तो उसको दूसरा पर्सन एक्नॉलेज कर सकता है. और बहुत सिंपल वर्ड्स में, आपके किसी भी सेंस ऑर्गन के एक्सपीरियंस में कोई भी वर्ड यहां पे अगर आप महसूस करते हो या देखते हो, आपकी एक्सपीरियंस में आता है, तो वर्ड वो कॉन्क्रीट नाउन है. तो परफ्यूम, ओके, और इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मेजरेबल है. आपने परफ्यूम अप्लाई किया अपनी बॉडी पे, यू वेयर परफ्यूम, यू अप्लाई परफ्यूम, सो समवेयर यू फील कि हाँ अच्छा खुशबू है. किसी ने कहा कि अच्छा नहीं है, राइट? आप कहते हैं कि थोड़ा सा कम अप्लाई करें, किसी ने कहा कि थोड़ा ज्यादा अप्लाई करें. थिंक अबाउट इट. ऐसे ही और वर्ड्स को देखते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मेजरेबल है. किसी ने आपसे कहा कि कम अप्लाई करो, उस कंडीशन में आपने कम अप्लाई किया, सो द अदर पर्सन इज सेटिस्फाइड, ओके, क्योंकि उसने एक्सपीरियंस किया कि अब इसका फ्रेग्रेंस उतना नहीं जितना होना चाहिए. ओके, फोन, फिजिकल ऑब्जेक्ट, यू कैन सी, यू कैन टच, प्लेन, इजी. हार्ट, अब आप कहेंगे हार्ट विजिबल नहीं है, आपको विजिबल नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स को तो विजिबल है. इट्स एन ऑब्जेक्ट इनसाइड योर बॉडी, एक ऑर्गन है आपकी बॉडी के अंदर है, एक ऑब्जेक्ट है आपकी बॉडी के अंदर, आपको विजिबल नहीं है बट डॉक्टर को विजिबल है, बट ये है तो सही. ओके, सो कॉन्क्रीट नाउन इट इज. अलार्म, ओके, अलार्म, जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं, एज द अलार्म रिंग्स, ओके, एज द अलार्म स्टार्ट्स, सो इन दैट केस इट गोज इनटू योर ईयर एंड समवेयर यू डू नॉट फील गुड, सो यू स्विच इट ऑफ एंड यू स्लीप अगेन. इसका मतलब आपके एक्सपीरियंस में आया, इसका मतलब आपके एक्सपीरियंस में आया. कोई दूसरा पर्सन वैलिडेट कर सकता है कि यस इट वाज लाउड इनफ, योर अलार्म वाज लाउड इनफ, तो इसका मतलब दोनों ने सेम एक्सपीरियंस किया, इसका मतलब मेजरेबल है. अंडरस्टैंड? आपने अलार्म सुना, यू डिड नॉट फील गुड एंड यू पुट इट ऑफ, यू पुट इट ऑफ. दूसरे पर्सन ने सुना, उसने भी कहा इट इज वेरी इरिटेटिंग, स्विच इट ऑफ, आपने स्विच ऑफ किया, इसका मतलब दोनों के सेम एक्सपीरियंस में है. ओके, और यूजिंग वन सेंस ऑर्गन यू एक्सपीरियंस इट. सो मेजरेबल है, मेजर किया जा सकता है, वैलिडेट कर सकते हैं, इसलिए अलार्म. ओके, इट कम्स थ्रू द सेंस ऑर्गन. नाउ म्यूजिक, अगेन
It comes one of the sense organs by, it comes from one of the sense organs. You receive it by ear. Okay, so music. Music loud है तो आप कहते हैं कि थोड़ा कम कर लीजिए, म्यूजिक कम है तो आप कहते हैं थोड़ा लाउड कर लीजिए. जब आपने लाउड किया, जब आपने कहा कि थोड़ा लाउड कर लो, तो दूसरे पर्सन जो आपके पास बैठा हुआ था उसने भी आपकी इस बात को सुना. फिर जो ऑपरेट कर रहा है उसने वॉल्यूम बढ़ाया, तो फिर पास वाले पर्सन ने वैलिडेट कर दिया कि हाँ अब ज़्यादा हो गया है, इनफ हो गया है, जितना आप चाहते हैं उतना हो गया है. इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग सेम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, मेजरेबल है, दूसरे लोग वैलिडेट कर रहे हैं, इसलिए ये कॉन्क्रीट नाउन है. कार इजी, बेड इजी. लाफ्टर, लाफ्टर मीन्स अगेन टू लाफ. तो टू लाफ तो वर्ब है, लेकिन लाफ्टर खुलकर हंसना, तो यहां पे लाफ्टर जो है किससे रिसीव हो रहा है? लाफ्टर रिसीव हो रहा है आपके ईयर से. ओके, क्योंकि आपको हंसने का आवाज आता है. पेंसिल इजी, वॉलेट इजी. स्मोक, स्मोक विजिबल. यू कैन ऑल्सो स्मोक विजिबल एंड यू कैन ऑल्सो सेंस इट यूजिंग योर नोज. ओके, थंडर. किसी को स्मोक करने से इरिटेशन होती है, किसी को स्मोक करने से अच्छा लगता है. किसी ने, कोई पैसिव स्मोकर है, स्मोक तो करता है, एक्टिव भी है, लेकिन किसी मोमेंट के लिए वो पैसिव है. somebody is smoking and if you are also a smoker, if you smoke, so उसकी जो स्मोक है उसको स्मेल करते हैं आप, उसको सूंघते हैं आप, and somewhere you also want to smoke at the same time. okay, तो आपको थोड़ी सी तलब सी महसूस होती है. in other way I can say somebody who doesn't smoke like you, और किसी ने स्मोक किया, so you feel uncomfortable, you say I just want to get off this place because it is very irritating, I cannot bear it. So in that case का मतलब मेजरेबल है, दूसरे लोग वैलिडेट कर सकते हैं. ओके, और एक आप सेंस ऑर्गन से इसे एक्सपीरियंस करते हैं. थंडर, अगेन ये बहुत तेज साउंड. लाइटनिंग जो होती है स्काई में और आवाज जो आती है, सो थंडर, थंडर स्टॉर्म, यू नो. नाउ एग इजी है. विस्पर, इन साइलेंट वॉइस somebody says something to you. कोई आपके कान में कुछ कह रहा है, दूसरा पर्सन को बिल्कुल सुनाई तो आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा. राइट, बिल्कुल भी उसे समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसे ये पता चल रहा है कि कुछ कहा जा रहा है, समथिंग इज बीइंग सेड. ओके, तो दैट इज विस्पर. विस्पर इज अगेन नाउन. बेल्ट इजी, न्यूज़पेपर इजी, दीज आर फिजिकल ऑब्जेक्ट्स. एप्पल इजी, रेडियो इजी. सो दीज नाउन्स आर कॉन्क्रीट नाउन्स. इसमें आपको जो चैलेंज होता है वो चैलेंज अलार्म को, म्यूजिक को, परफ्यूम को लेकर होता है. नाउ आई थिंक योर चैलेंज इज डिसअपियर्ड. Now, abstract nouns, things that are real but you cannot touch, smell, taste, see and hear them. They are qualities, ideas, emotions or events. Now, pay attention. ये जितने भी nouns हैं, ये तो आपके हो गए concrete. लेकिन अब समझते हैं, टेबल का कलर, साइज, शेप क्लियरली आपको दिखता है, एक्सपीरियंस करते हो आप, तो कॉन्क्रीट है, टच कर सकते हो आप, किसी सेंस ऑर्गन से देख सकते हो आप उसे. उसका साइज है, उसका शेप है, उसके कुछ कलर्स है, कॉन्क्रीट हो गया. लेकिन टेबल से आपको कंफर्ट मिलता है. कोई टेबल है, उससे आपको क्या मिलता है? कंफर्ट. अब जो कंफर्ट है ये एब्सोल्युटली विद इन है, ये किसी सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं होता. आप किसी भी सेंस ऑर्गन से कंफर्ट को परसीव नहीं करते. आप जो परसीव कर रहे हैं, कलर्स को परसीव कर रहे हैं टेबल में, साइज को परसीव कर रहे हैं आप, शेप को परसीव कर रहे हैं आप, आपको अच्छा लग रहा है. लेकिन जो कंफर्ट, क्योंकि कंफर्ट भी एक वर्ड है और ये भी नाउन है, आपका कंफर्ट, मेरा कंफर्ट, सो कंफर्ट नाउन है. ओके, तो ये जो कंफर्ट है ये आप किसी सेंस ऑर्गन से परसीव नहीं कर रहे, सो ये एब्स्ट्रैक्ट है. एब्स्ट्रैक्ट मतलब विजिबल नहीं है, छुपा हुआ है. आप मुझे कहेंगे कंफर्ट का शेप साइज बताएं, यू कैन नॉट मेजर दैट. अंडरस्टैंड? टीचर आपको फ्रीडम देता है, टीचर आपको फैसिलिटेट करता है, ही गिव्स यू फ्रीडम. तो फ्रीडम जो वर्ड है आप इसे मेजर नहीं कर सकते, कोई कलर, शेप, साइज नहीं है. राइट, टेलीविजन आप देखते हैं, बहुत सारे इमोशंस आपके अराउज होते हैं. सो इमोशंस, यू आर इमोशनल, दैट्स व्हाई यू हैव इमोशंस. ओके, सो इमोशंस जो है अगेन छुपा हुआ है, एब्स्ट्रैक्ट दुनिया में है. ओके, एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड में है, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. परफ्यूम जब आप लगाते हैं तो आपको आनंद आता है, प्लेजर. यू एक्सपीरियंस प्लेजर द मोमेंट यू स्मेल फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम. राइट, सो आप इसको मेजर नहीं कर सकते प्लेजर को.
किसी के फेस को देखकर नहीं बता सकते कि वो कितना प्लेजर उस मोमेंट पे परसीव कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, ले रहा है, कभी नहीं बता सकते आप, राइट? क्योंकि विजिबल नहीं है, मेजरेबल नहीं है, कोई एक्नॉलेज नहीं कर सकता है। कभी कोई पर्सन सुसाइड अटेम्प्ट करता है, कभी कोई पर्सन सुसाइड करता है, तो इन दैट केस आपको पता ही नहीं चल पाता कि पर्सन के साथ क्या हुआ। उसे डिप्रेशन था या नहीं, उसे स्ट्रेस था या नहीं, उसे टेंशन थी या नहीं, ये आपको पता ही नहीं चल पाता है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट है ना। अंडरस्टैंड? किसी सेंस ऑर्गन से आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। स्ट्रेस, फोन ज्यादा यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेस आने लगता है। स्ट्रेस कैनॉट बी मेजर्ड। एक्साइटमेंट, जब आप प्लेन में ट्रेवल करना चाहते हैं, यू वांट टू ट्रेवल बाय प्लेन एंड you have excitement for it. So excitement, abstract. Laughter. Whenever you have laughter, actually you have joy. You have happiness. So happiness, joy, pleasure, आनंद, इसको मेजर नहीं कर सकते हैं आप। पेंसिल, आपका हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है तो आपकी जो ब्यूटी है, आपकी जो राइटिंग है, उसकी जो ब्यूटी है, आप ब्यूटी को मेजर नहीं कर सकते आप, सुंदरता, राइट? वॉलेट, अगर आपका वॉलेट बहुत भारी है, इट हैज लॉट ऑफ मनी, सो यू हैव ईगो। नाउ ईगो कैन नॉट बी मेजर्ड। आप पता ही नहीं लगा सकते किस पर्सन में कितना ईगो है। आप कुछ सर्टेन एक्सपीरियंसेस के आधार पे कह देते हो, ऑन बिहाफ ऑफ सम सर्टेन एक्सपीरियंसेस परसीव्ड बाय यू, जनरली से दैट यस ही हैज ईगो। और हो सकता है उस पर्सन में वो ईगो नहीं हो, या आपके अपने खुद के फिल्टर्स हो सकते हैं जो आपने परसीव किया उसे एक्सपीरियंस के आधार पे। अंडरस्टैंड? सो ईगो कैन नॉट बी मेजर्ड। एब्स्ट्रैक्ट वर्ड में है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेडेक, मुझे हेडेक हो रहा है, आपने बहुत जल्दी बहाना बना लिया। किसी ने कहा ओके इनको हेडेक, इनको जाने दो, लेट हिम गो बिकॉज ही इज हैविंग हेडेक, ही इज नॉट कंफर्टेबल एट द मोमेंट, सो यू लेट हिम गो, और समबडी लेट्स यू गो। सो इन दैट केस क्या पता उसको हेडेक था या नहीं। आप सेंस से, आप स्मेल से सेंस नहीं कर सकते, आई से सेंस नहीं कर सकते, ओके, ईयर से सेंस नहीं कर सकते, लेकिन उसने कहा उसको हेडेक है और वो चला गया, एंड एक्चुअली ही डिड नॉट हैव हेडेक बिकॉज यू कुड नॉट मेजर दैट। अंडरस्टैंड? सो अगेन इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉलेज में आप करियर बनाने जाते हैं, यू गो टू कॉलेज जस्ट टू मेक योर करियर। Egg, some people think that it gives you energy, I don't think so, okay, और देता होगा साइंटिफिकली, ओके, बट और भी दूसरे सोर्सेज हैं, ओके, एनर्जी के। बट एनीवे, एग से आपको क्या मिल रहा है? एनर्जी आपको मिल रहा है। नाउ एनर्जी आपको मिल रहा है, एनर्जी कहां है? एनर्जी, एग विजिबल है, उससे एनर्जी मिलता है। हमें क्या पता एनर्जी मिलता है? कैसा भी डिस्कशन हो, मैं कह दूं कि एनर्जी नहीं मिलता, क्योंकि एनर्जी एब्स्ट्रैक्ट है, आप नहीं बता सकते एनर्जी है या नहीं, कोई नहीं बता सकता। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एनर्जी, डेफिनेटली देयर इज एनर्जी, you get energy, you get charged, finite amount of energy you have, and then you spend this energy in the people and the things around you, and then you take food, and the next morning energy builds up again, next morning again you start working. So energy is there, yes, undoubtedly, but energy cannot be experienced by sense organs, okay? So these words are abstract nouns. I think it is clear up to this point. Now we move on. Compound nouns. Nouns made up of two words. Nouns that are made up of two words. Each word has its own separate meaning, but once joined together, I mean when these two nouns are joined together, the meaning changes slightly. थोड़ा meaning change होता है, समझते हैं क्या है? ब्रेक, देखिए ब्रेक का मतलब to put something into chunks, ब्रेक का मतलब तोड़ना, टूटना, ओके। सो ब्रेक जो है ये इसका मतलब है टूटना। और फास्ट, फास्ट यहां पे फास्ट का मतलब है फास्टिंग से, आप फास्टिंग करते हैं, आप व्रत रखते हैं, राइट, वी कॉल इट फास्टिंग। सो फास्ट का मतलब है you do not take food for maybe for a long period of time, maybe for longer hours you do not eat anything, so in that case you have fasting. तो जो गैप है
जो आपके दो मील्स के बीच में जो गैप है वो बहुत लंबा गैप है, तो इसका मतलब आपने फास्टिंग किया। तो देखिए यहां पे फास्ट की बात हो रही है, यहां पे ब्रेक की बात हो रही है। ब्रेक का जनरल मीनिंग तोड़ना है, और ब्रेक के बहुत सारे मीनिंग्स एक्चुअली में देखा जाए तो। A word that has n number of different meanings. When you go to dictionary, when you look up the word in the dictionary, you will not find the words the way you want them to be listed, because a word has n number of meanings. एक word के एक ज्यादा meanings हैं, right? So break के बहुत सारे meanings हैं, but general meaning is to break, मतलब तोड़ना generally, okay? और fasting से related है, तो जो gap है दो meals के बीच में वो fast है, और break का general meaning है तोड़ना, right? अब इन दोनों को जब आपने ऐड किया तो ये एक मील बन गया, ब्रेकफास्ट। इट्स अ मील। सो थोड़ा मीनिंग चेंज हुआ, बट दोनों के कॉम्बिनेशन से समझ आता है, राइट? आपने उस गैप को ब्रेक किया, इसका मतलब ब्रेक करोगे कैसे? व्हेन यू टेक समथिंग, व्हेन यू ईट समथिंग, तभी तो ब्रेक करते हो उस दो मील्स के बीच में जो गैप है उसको। सो ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट क्या है? एक तरीके का मील है, तो आप एक मील को रेफर कर रहे हो। बेड, रूम, बेड यू नो, रूम अ प्लेस, बहुत सारे रूम्स होते हैं, ये भी रूम है वो भी रूम है, रूम एक कॉमन नाउन है, कॉमन नेम है, राइट? सो बेडरूम, दोनों को जब ऐड करेंगे, सो बेडरूम अ प्लेस वेर यू स्लीप। थोड़ा सा मीनिंग चेंज कैसे हुआ? यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस वेर यू स्लीप, ओके, दैट्स बेडरूम, ओके। फुटबॉल, सो फुट, यू आर हियर वी आर रेफरिंग टू वन लेग, ओके, फुट, नॉट लेग एग्जैक्टली, पैर आपका जो है, लेकिन एक इंडिविजुअल पैर को बता रहे हैं, अकेले पैर को बता रहे हैं। बॉल, यू नो द मीनिंग, पर फुटबॉल, यहां पे फुटबॉल हम एक स्पोर्ट की बात कर रहे हैं, एक स्पोर्ट है, okay? Now air, you know, air, craft, so craft means to sharpen something, कोई चीज है जो कोई क्राफ्ट है, इसका मतलब है कोई चीज थोड़ी सी शार्प है, तो आप यहाँ पे एयर और शार्प, सो एयरक्राफ्ट। अब यहाँ पे एयरक्राफ्ट का मतलब हो गया एयरप्लेन, यहाँ पे आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो जो कि प्लेन को रेफर करता है। ईयर रिंग, सो ईयर यू नो एंड रिंग, देयर माइट बी एन नंबर ऑफ रिंग्स, तो जब ईयर और रिंग दोनों वर्ड मिलेंगे तो यहां पे ये पर्टिकुलरली किसको रेफर कर रहा है? वन ऑफ द एक्सेसरी, वन ऑफ द एक्सेसरीज, यू हैव अ नंबर ऑफ एक्सेसरीज दैट यू यूज, यू अप्लाई, मे बी दैट मे बी इन योर ज्वेलरी। सो यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द पीसेस ऑफ ज्वेलरी, वन ऑफ द पीसेस ऑफ ज्वेलरी वी हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, सो यहां पे ईयर रिंग, ओके, वन ऑफ द पीसेस ऑफ ज्वेलरी। Wallpaper, you know, wall and paper, but when you combine them, wallpaper, आप अपने फोन पे वॉलपेपर देखते हैं, अपने स्क्रीन पे वॉलपेपर देखते हैं, ओके, वॉलपेपर अपने रूम में भी पेस्ट करते हैं, करवाते हैं किसी से, सो दैट इज वॉलपेपर, मींस अ पर्टिकुलर पिक्चर, ओके, दैट इज वॉलपेपर। नाउ बेसबॉल, अगेन स्पोर्ट को रेफर कर रहा है। नोटबुक, नोटबुक, ओके, यू नोट समथिंग, कोई नोट होता, मतलब नोट एक वर्ब भी है और नोट एक नाउन भी है, कोई भी नोट आप लगा देते हैं, टैग कर देते हैं, राइट? सो एक नोट और एक बुक, तो जब दोनों मिलते हैं तो डिफरेंट नाउन बन गया, दैट इज नोटबुक, ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपाउंड नाउन। मार्केट प्लेस, अगेन मार्केट प्लेस। रेलवे, वन ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, वन ऑफ द बिग ऑर्गेनाइजेशंस, आई डू नॉट नो टेक्निकली कि ऑर्गेनाइजेशंस के टाइप्स एंड ऑल, बट जनरली आई एम सेइंग कि गवर्नमेंट ऑपरेटेड और बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेट होता है ये कॉर्पोरेशन, ये बड़ा बिजनेस, ओके। सो रेलवे, ये वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ द बिग कॉर्पोरेशंस। Heart, beat, everybody has heart and beat, you know, general meaning of beat is beats, when you listen to music you enjoy beats, so heart beat, so यहाँ पे heart beat हो गया। heart beat, जब आपका हार्ट पंप करता है, so you do not hear it directly, but using an equipment you can hear it, so heart beat, तो उसकी पंपिंग से जो आवाज जनरेट होता है, जो वॉइस जनरेट होता है, उसको आप हार्ट बीट बोलते हैं। चेयरमैन, ओके, सो चेयरमैन, अ पर्सन अमंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन को लीड करते हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, ओके, उसमें एक पर्सन होता है जो हेड करता है ऑर्गेनाइजेशन को, ही इज चेयरमैन। सो चेयर, आप सभी जानते हैं, चेयर एन ऑब्जेक्ट ऑन विच यू सिट, और मैन, सो मैन सिट्स ऑन अ चेयर। Chairman, two different objects. When they are combined together, it gives absolutely different meaning. Chairman. Here we are talking about position. Okay. So इन दोनों nouns के join करने पे एक नया word बन रहा है जिसका थोड़ा सा slightly meaning change हो जाता है और उनको हम बोलते हैं compound nouns. I think it is clear. Next, countable nouns.
एनी ऑब्जेक्ट यू कैन काउंट एंड रिकॉर्ड ए नंबर. यस, इन जितने भी वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स, इनसे पहले आप कोई भी नंबर रखोगे, इफ यू पुट एनी नंबर इट विल मेक अ मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन. यस, तो फिर ये काउंटेबल नाउन्स हो गए. 5 विंडोज, 3 बैग्स, 2 बॉटल्स, 10 बुक्स, 1 डॉग एंड 10 मैन. देखिए, मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, आगे हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने जा रहा है और उसी पर बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स, और उसमें बहुत कंफ्यूजन रहता है, बहुत क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो आवर नेक्स्ट लेसन इज गोइंग टू बी दैट वन. So it is easy. I should move on. Uncountable nouns, things that you cannot count no matter how hard you try. कितने भी कोशिश कर लें काउंट नहीं कर पाएंगे आप उसे. अगर आपको उसको प्लूरल फॉर्म देना है तो आप आने वाले वीडियो में सीखेंगे. प्लूरल फॉर्म तो दे सकते हो उसे, बट उसके अलग अलग पैटर्न्स है, अलग अलग तरीके हैं. ओके, दे डोंट गो विद नंबर्स. इनसे पहले दे डोंट गो विद नंबर्स का मतलब है इनसे पहले आप कोई भी नंबर रखोगे तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा. I cannot say 5 cent. 5 cent कभी पॉसिबल नहीं है. सैंड यानी मिट्टी, यू नो. फ्लोर, यू मेक चपातीज यूजिंग द फ्लोर, ड्राई फ्लोर. उस ड्राई फ्लोर को यूज करते हुए आप चपाती बनाते हैं. सो आप चपाती को तो काउंट कर सकते हैं, 10 चपातीज, 5 चपातीज, बट 5 फ्लोर, 10 फ्लोर नॉट पॉसिबल. नॉलेज, यू हैव 10 नॉलेज, मीनिंगलेस. यू हैव 10 पीसेस ऑफ नॉलेज. अगेन, सो कहाँ पीसेस आएगा, कहाँ पे पैक आएगा, कहाँ पे हाइव आएगा, तमाम तरीके की चीजें आप आगे सीखने वाले हैं. ओके, कहाँ पे पैनल आएगा, कहाँ पे बंच आएगा, कहाँ पे ग्रुप आएगा. ओके, ये सब चीजें आप आगे देखेंगे. सो सेफ्टी, 5 सेफ्टी, 10 सेफ्टी नॉट पॉसिबल. एयर, ऑनेस्टी, ब्यूटी, लव, 10 लव, 5 लव. बीन्स, कॉटन, एडवाइस. लेट मी टेल यू वन इंटरेस्टिंग थिंग हियर. ADVISE, जब SE होता है तो ये एज ए वर्ब काम करता है, और जब ये CE होता है तो ये एज ए नाउन काम करता है. फॉर एग्जाम्पल PRACTICE, प्रैक्टिस. ओके, तो ये नाउन है. और PRACTISE ये वर्ब है. लेकिन स्टिल लेट मी टेल यू, PRACTICE ये जो है ये वर्ब भी होता है. तो PRACTICE वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है. लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि एडवाइस के केस में ऐसा नहीं है. CE है तो आप जनरली इसको नाउन की फॉर्म में काउंट करते हैं, कंसिडर करते हैं. और जहां पे भी ऐसे आ गया वो वर्ब होता है. तो ये एडवाइस दोनों वर्ब हैं, और प्रैक्टिस और एडवाइस दोनों नाउन हैं. लेकिन जो PRACTICE है ये वर्ब भी है. ओके, सो आइस, स्नो, सॉल्ट, बटर, मिल्क. ओके, ऑल द वर्ड्स आर अनकाउंटेबल नाउन्स. वेरी इजी. You cannot put any number before them. Next is collective nouns. The names given to a group of people. देखिए, इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहां पे जो कलेक्टिव नाउन्स हैं इसमें आप ग्रुप की बात कर रहे हैं. बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे लोग ग्रुप में जब भी होंगे तो फिर उनको एक डिफरेंट आइडेंटिटी दे दी जाती है, उसको आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. लेकिन होंगे वो सभी ग्रुप्स. ओके, इफ देयर आर मेनी डांसर्स. अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पे क्या है. डांसर्स, डांसर कॉमन नाउन है. प्लेयर, प्लेयर कॉमन नाउन है. एक्सपर्ट कॉमन नाउन है. थीव, थीव्स कॉमन नाउन है. स्टूडेंट्स कॉमन नाउन है. म्यूजिशियन कॉमन नाउन है. डायरेक्टर कॉमन नाउन है. एम्प्लॉइज कॉमन नाउन है. तो जब ये कॉमन नाउन, क्योंकि है कॉमन, इसका मतलब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आता है. कॉमन नेम है, इसका मतलब कॉमन नेम है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के लिए काम आता है. तो जब बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स विद कॉमन नेम जब एक साथ आते हैं तो फिर आप उनको एक अलग आइडेंटिटी दे सकते हैं. यही तो सीखना है इसमें. सो इफ देयर आर मेनी डांसर्स, मींस डांसर एक कॉमन नाउन है. बहुत सारे डांसर्स जब कलेक्टिवली आते हैं, एक साथ आते हैं, मैंने कहा कलेक्टिवली आते हैं, देखिए इसीलिए इसका नाम कलेक्टिव नाउन है. तो कलेक्टिवली आते तो यू कैन कॉल देम ट्रूप. ओके, इफ देयर आर मेनी प्लेयर्स यू कैन कॉल इट अ टीम. इफ देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स यू कैन कॉल इट अ पैनल. ओके, पैनल. जो पैनल होता है, एक्सपर्ट्स का जो पैनल होता है, वही तो आपको असेस करता है इन योर इंटरव्यूज. Okay. If there are many thieves, you call it gang. If there are many students, you call it class. If there are many musicians, you call it band. Okay? Not band, sorry, my pronunciation. Let me correct. It's band. Okay? Not band, it's band. If there are many directors, we call it board. If there are many employees, you call it staff. So,
एक एम्प्लॉय, दूसरा एम्प्लॉय, तीसरा एम्प्लॉय, चौथा एम्प्लॉय, फर्स्ट एम्प्लॉय, ये सारे एम्प्लॉय जब एक साथ आ जाएंगे यू कॉल इट स्टाफ, इजी। लेकिन जो सीखने वाली बात थी वो थी कॉमन नेम्स हैं, और क्योंकि कॉमन है बहुत सारे लोगों के लिए काम आते हैं, तो जब सब लोग एक साथ आते हैं यू कैन गिव देम ए डिफरेंट आइडेंटिटी, और वो उसी को आप कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन्स अब देखिए, फॉर पीपल, ट्रूप, टीम, पैनल, गैंग, क्लास, बैंड, बोर्ड, स्टाफ। फॉर एनिमल्स, हाइव्स, जो बीज मधुमक्खी होती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? व्हेन ऑल द बीज आर कमिंग टुगेदर, सिटिंग टुगेदर, सो यू कॉल इट हाइव। ओके। आर्मी ऑफ आंट्स, चींटियां जब एक साथ हैं तो यू कॉल इट आर्मी। पपीज जब एक साथ हैं, यानी जो डॉग के जो बच्चे होते हैं यू कॉल देम पपीज, तो जब वो एक साथ है यू कॉल इट लिटर। ओके। क्रोज, क्रोज, कौवे जब वो एक साथ हैं यू कैन कॉल देम मर्डर। ओके। पैक ऑफ हाउंड्स, बेसिकली इसका मतलब होता है डॉग्स, जो फास्ट रनिंग करते हैं, बहुत तेज दौड़ते हैं, इनमें दौड़ने का कैपेसिटी बहुत हाई होता है, वी कॉल देम हाउंड्स। ओके। सो अ पैक ऑफ हाउंड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप। आप सोचोगे या हाउंड्स है या क्रोज है या पपीज है या आंट्स है या बीज है, तो फिर यहां पे शीप्स क्यों नहीं लगाया? यही मैं आपको इंटरेस्टिंग बात, इसी पर बेस्ड इंटरेस्टिंग पॉइंट्स और टाइप्स ऑफ प्लूरल और सिंगुलर नाउन्स मैं बात करने जा रहा हूं अगले सेशन में, मिस मत कीजिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन दैट इज गोइंग टू बी। तो शीप्स कभी नहीं होता है, शीप का प्लूरल नहीं बनता है, सो फ्लॉक ऑफ शीप ही रहेगा, शीप्स नहीं होगा। ओके, इट इज राइट। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, प्राइड ऑफ लायंस, जब लायंस का ग्रुप होता है यू कॉल इट प्राइड। ओके। उसी तरीके से थिंग्स का जब ग्रुप बनता है तो यू कैन अगेन यूज डिफरेंट कलेक्टिव नाउन्स। पेयर, शूज जब एक साथ में हैं तो पेयर ऑफ शूज। बंच ऑफ फ्लावर्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, यहां पे शिप्स है, यहां शीप है, ऑलवेज रिमेंबर। फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, पैक ऑफ कार्ड्स, बंच ऑफ कीज, बुके ऑफ फ्लावर्स। ओके, बुके ऑफ फ्लावर्स, सो दीज आर कलेक्टिव नाउन्स। I think understanding is clear so far. Material nouns, things from which the other things are made. Very easy, सबसे आसान है ये। Iron, ये इससे बहुत सारी चीजें बन सकती हैं। Gold, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं। Copper, salt, sand, देखिए things from which the other things are made, इनसे बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाए जा सकते हैं, राइट? इसलिए इनको बोलते हैं हम क्लोथ, ब्रिक, सीमेंट, चॉक, बटर, वुड, लेदर, हनी, इनसे बहुत सारे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, सो वी कॉल देम मटेरियल नाउन। ये बेसिकली ये मटेरियल की तरह काम में आते हैं। आप इन मटेरियल को यूज करते हो, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स, बहुत सारे थिंग्स प्रोड्यूस कर लेते हैं, बना लेते हैं आप, तो राइट, दैट्स व्हाई वी कॉल देम मटेरियल नाउन। possessive nouns, they tell the owner of something. possessive nouns क्या बताएंगे? ऑनरशिप बताएंगे, और possessive nouns बेसिकली ऑनर को बताएंगे। दो चीजों के बीच में बिलोंगिंग बताना, रिलेशनशिप बताना, वो इसके थ्रू पॉसिबल है। यशवंत एक्सप्लेनेशन, और देखिए ये अपोस्ट्रोफी से पहचाना जाएगा, सो यशवंत एक्सप्लेनेशन, यशवंत का एक्सप्लेनेशन यानी एक्सप्लेनेशन समवेयर बिलोंगिंग टू यशवंत, सो यशवंत एक्सप्लेनेशन इस अपोस्ट्रोफी से पता चल रहा है कि ये आपका possessive noun है। धोनीज हेलीकॉप्टर शॉट, करीनाज हस्बैंड, राहुल्स स्पीच, इंडियाज प्राइम मिनिस्टर, स्टूडेंट्स ग्रेड्स, टुडेज न्यूज़पेपर, ये सब possessive nouns है। Sorry, let me come back. देखिए कुछ questions हैं, very easy questions these are, so just go through them and try to find out the right answer fast. Easy questions these are. Now we move on. Identify the type of noun underlined in the sentence. So the wisdom of the old man was appreciated by all. Underlined word is wisdom. Wisdom का मतलब कोई पर्सन जिसमें बहुत नॉलेज है, he is wisdom. कोई पर्सन जिसमें बहुत नॉलेज है, so he has wisdom. ओके, उसमें विजडम है, बहुत एक्सपर्टीज किसी चीज को लेकर उसमें है, ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, राइट? चीजों को समझने की क्षमता बहुत है, बहुत इंटेलेक्चुअल है पर्सन, राइट? सो द पर्सन दैट्स व्हाट वी कॉल विजडम। सो विजडम कैसा नाउन है? अब विजडम मेजर नहीं किया जा सकता है, सो ऑब्वियसली इट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Next, which of the following words, it should be which of the following words. So which of the following words is a proper noun? Which one is proper noun? New York,
क्योंकि न्यूयॉर्क कॉमनली किसी बहुत सारे प्लेसेस के लिए कॉमनली काम नहीं आता। जयपुर प्रॉपर नाउन, राजस्थान प्रॉपर नाउन, इंडिया प्रॉपर नाउन, ये वो कॉमनली काम में आने वाले वर्ड्स नहीं है जिनको आप अलग अलग प्लेसेस के लिए यूज मिले। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, choose the countable noun in the following sentence. Yes, there's just one sentence. She has a lot of friends. So आपको countable noun ढूंढना है। She pronoun has again verb. You can call it auxiliary verb, but here it is main verb because after this a noun is being used. Friends. So ये आपका countable noun है। Easy. So friends is your answer. Which one of these is an uncountable noun? Uncountable noun जिससे पहले कोई भी नंबर मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन नहीं बनाता। 3 apples, 5 books, 10 rice. 10 rice is meaningless. So this is uncountable. The word team is an example of collective noun. क्योंकि बहुत सारे player is common noun, बहुत सारे players एक साथ आते हैं, आपने एक collective name दे दिया and that is team. Easy. Next, choose the correct plural form of the noun child. Child का आपको plural form देखना है। चाइल्ड्स नहीं होता है, मैं बहुत डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं। डोंट मिस दैट सेशन, दैट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। चाइल्ड्स नॉट पॉसिबल, चिल्ड्रन इज राइट आंसर। चिल्ड्रंस भी नहीं होता है, नेवर एवर। आइडेंटिफाई द ओनली कॉमन नाउन, ध्यान दीजिएगा, जो केवल कॉमन नाउन है। टीचर आप कहेंगे टीचर कॉमन नाउन है। स्पोक वर्ब, क्लास आप कहेंगे क्लास भी कॉमन नाउन है। ये भी क्लास है, वो भी क्लास है, वो भी क्लास है, क्लास कॉमन नाउन है। लेकिन क्लास का स्पेशल टाइप क्या है कि वो कलेक्टिव नाउन है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स एक साथ बैठेंगे तो यू कैन कॉल इट क्लास। अंडरस्टैंड? सो यहां पे ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। एंड एग्जाम भी आपका ओके, एग्जाम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एग्जाम आपका कैसा है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसका स्पेशल टाइप वो है। तो द राइट आंसर इज टीचर। होने को तो कॉमन नाउन ये भी है, ये भी कॉमन नाउन है, बट ये स्पेशली क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया और यहां पे एग्जाम आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। ओके, next, which of the following sentences contains a proper noun? She walked to the market. Mount Everest, here we want proper noun, Mount Everest. और एक देखिए proper noun की एक स्पेशलिटी और होती है। There is one more speciality of proper noun कि proper noun कैपिटल लेटर से शुरू होगा क्योंकि वो किसी का नाम है। अंडरस्टैंड? नाम है और यूनिक नेम है, राइट? अलोन काम में लिया जाता है, कॉमनली काम में नहीं लिया जाता, राइट? सो दैट्स सो कैपिटल letter. Here it is. So Mount Everest is the highest mountain. They have okay, the right answer is already there. Next, identify the only abstract noun in the sentence. The only abstract noun, जो केवल abstract noun है। Sheep, pronoun, short verb, courage, crisis. देखिए crisis जो है ये plural है, plural noun है और इसका singular noun होता है crisis। ओके, करेज भी यहां पे आप देख सकते हैं कि करेज भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और क्राइसिस भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इन दिस क्वेश्चन आई वुड से दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इस क्वेश्चन में दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नो प्रॉब्लम। ओके, करेज एंड क्राइसिस, क्योंकि दोनों को ही आप मेजर नहीं कर सकते तो दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एनीवे, अगर क्वेश्चन देखिए यहां, क्योंकि हमें कोई यहां पे एरर स्पॉट करना नहीं है, कोई ऑप्शन चूज करना नहीं है, सिर्फ समझ रहे हैं हम लोग, राइट? दोनों करेक्ट है। इन केस अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होता है सो डेफिनेटली वन ऑफ दीज ऑप्शन शुड बी चेंज्ड, वन ऑफ दीज ऑप्शन शुड बी चेंज्ड। वन ऑफ दीज ऑप्शंस बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखिएगा। ओके ओके, क्या होता है वन ऑफ दीज ऑप्शंस? इस कॉन्सेप्ट को समझते, ध्यान दीजिए, वेरी इंटरेस्टिंग इट इज गोइंग टू बी। Now let me go back to my notepad. देखिए नोटपैड पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं। कोई भी कंप्लीट एंटिटी है, एंटिटी का मतलब कोई भी थिंग, कोई भी यू कॉल इट, कोई भी चीज हो सकती है, एनीथिंग इट इज। सो जब भी कंप्लीट एंटिटी में से आप कुछ एंटिटी निकालते हो, विड्रॉ करते हो, जब भी आप कंप्लीट एंटिटी में से कुछ निकालेंगे, कुछ विड्रॉ करेंगे, तो वो इसके इक्वल में हो सकता है और लेस देन हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होगा, राइट? तो आप इस रिलेशनशिप को हमेशा ऑफ से बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 50 स्टूडेंट्स है, इन टोटल देयर आर 50 स्टूडेंट्स। अब 50 स्टूडेंट्स में से मुझे कहना है कि 3 स्टूडेंट्स आगे आ जाइए, तो मैं कहूंगा 3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज कम फॉरवर्ड, 3 ऑफ द स्टूडेंट्स प्लीज कम फॉरवर्ड। सो 50 में से मैं कितना निकाल रहा हूं? 3।
So three of the students. Okay. आप में से एक भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो आप अल्टीमेटली आई एम रेफरिंग टू ऑल द पीपल, आप, और मैंने कहा कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, तो मैं कहूंगा नन ऑफ यू भी बोल सकता हूं, नन ऑफ यू ऑल इज इंटरेस्टेड। ओके, इसी मैंने कहा आप सभी लोग दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएं, तो मैं कहूंगा ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज गेट टू दैट रूम, ऑल ऑफ यू ऑल प्लीज गेट टू अनदर रूम। सो ये ऑफ का रिलेशनशिप, कंप्लीट एंड में से कुछ भी विड्रॉ करेंगे आप। ओके, मान लीजिए कि हमेशा परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, कंप्लीट होता है, 100% अपने आप में कंप्लीट होता है, राइट। सो 100% में से अगर आपको परसेंटेज विड्रॉ करना है तो आप कहेंगे व्हाट परसेंट ऑफ, फॉर एग्जांपल व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन मैन, व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन वुमेन। सो व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन वुमेन, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल इंडियन वुमेन, उनका कितना परसेंटेज, अपने आप में 100% होता है, इसलिए कह रहे हैं व्हाट परसेंट ऑफ इंडियन वुमेन। अंडरस्टैंड, तो रिलेशनशिप ऑफ से जाएगा। आपने कहा आई हैव टू ब्रदर्स, आपने कहा आई हैव टू ब्रदर्स, फिर आप जो नेक्स्ट लाइन बोलते हैं आप कहते हैं वन ऑफ देम इज, ओके, दिस इज व्हाट इट इज। इंटरेस्टिंग, आई थिंक इट इज। नाउ वी मूव ऑन। Okay, so these two options are correct here. Sorry. Okay. Choose the collective noun for the options. Collective noun यहाँ पे sugar, not it is, pack. Okay, pack of cards. Which sentence contains a collective noun? Collective noun. He bought a new car. The flock of, collective noun. Flock of, group of, group की बात कर रहा है, right? She has a black dog. She has a black dog. Already answer is there. Next, the noun intelligence is, intelligence को measure नहीं कर सकते आप. It is your uncountable noun. उससे पहले कोई नंबर meaningful combination नहीं बनाएगा. You cannot say he has, somebody has 10 intelligence. 10 intelligence? Not possible. What is the common noun in the sentence? Common noun देखना आपको, library common noun है, easy. Identify the uncountable noun in the sentence. Uncountable noun, she gave me some advice. She gave me some advice. CE, noun, okay, advice, uncountable, easy. So that's it for today. Thank you very much. But make sure that you do not miss the next video. The next video is going to be about singular and plural nouns. And on that topic, most of the questions are generally asked, especially on the topic noun, in your all the competitive exams. So make sure that you do not miss that lesson. It's going to be very, very interesting. और मैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, ठीक है? So आज के लिए इतना ही. Thank you very much. Hare Krishna. I'll see you in the next video.